اہم خبر آپ کو دیں گے، بے نظیر کفالت پروگرام کی رقم میں اضافے کی منظوری دی گئی ہے۔ یہ جو ہمارا ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کے تھرو بھیجتے ہیں، لیکن ہمارا ایک ہی نمبر ہے، وہ ہے 8171 اگر ہم اس نمبر سے کوئی پیغام بھیجتے ہیں تو وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا پیغام ہوتا ہے۔ تمام خواتین کے پیسے آ گئے ہیں اور بے نظیر کفالت پروگرام کی نئی قسط جاری کر دی گئی ہے۔ اس بار بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے پیسے لینے والی خواتین کو بہت بڑی رقم مل رہی ہے، اور ساتھ ہی بڑی خوشخبری یہ ہے کہ رمضان پیکج بھی شروع ہو چکا ہے۔ صوبہ سندھ کے لوگوں کے لیے بھی رمضان پیکج کے تحت 15,000 روپے فی خاندان دیے جائیں گے۔ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو بھی رمضان پیکج کے تحت 12,000 روپے فی خاندان ملیں گے، اور پنجاب کے لوگوں کو بھی نگہبان کارڈ بھی ملے گا، اور ساتھ میں 10,000 روپے فی خاندان دیے جائیں گے۔ رمضان پیکجز کی رجسٹریشن سے لے کر امداد لینے تک کی مکمل معلومات، اور ساتھ میں بے نظیر کفالت پروگرام کی جاری ہونے والی نئی قسطوں کے حوالے سے بڑی خوشخبریاں آ چکی ہیں۔ آپ تمام لوگوں کو ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ تین قسطیں مل سکتی ہیں، اور یہ 3 قسطیں لینے کے حوالے سے کچھ خصوصی اپڈیٹس بھی ہیں، کچھ خصوصی شرائط و ضوابط بھی ہیں۔ اس بار لوگوں کو 30-35 ہزار تو ہر خاتون کو مل رہے ہیں جو پہلے سے پیسے لے رہی تھی، جس کے بچوں کے پیسے بھی رکے ہوئے تھے۔ باقی کافی ساری خواتین کے اکاؤنٹ میں تقریباً 80,000 90,000 یا 1 لاکھ سے بھی زیادہ کی رقم آئی ہوئی ہے۔ تو یہ اتنی بڑی رقم کن عورتوں کو مل رہی ہے اور آپ کیسے اتنی بڑی رقم لے سکتے ہیں، اس کے لیے بھی ایک طریقہ کار ہے۔ اگر آپ وہ صحیح طور پر فالو کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو آپ کو بھی یہ جو 80 یا 90,000 روپے کی رقم بتائی جا رہی ہے، آپ کو بھی یہ مل سکتی ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ۔ آپ نے خود ادھر ادھر سے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، آپ کے کسی ہمسائے نے، کسی قریبی رشتہ دار نے، کسی دوست نے اتنی بڑی رقم لی ہوگی۔ مطلب جو بھی خاتون پیسے لینے کے لیے اب جاتی ہے ریٹیلر شاپ سے، تو آپ ان سے پوچھ لیں کہ بھئی ان کو اس بار صرف 13,500 روپے نہیں، بلکہ اگر ان کی پہلی قسط ہے، پہلی بار وہ اہل ہوئے ہیں، تو پھر ان کی 14,500 روپے کی قسط آ چکی ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو پہلے سے پیسے لینے والی خواتین ہیں، جو پرانی بینیفیشریز ہیں، ان کی تو 30-35 ہزار یا 40 ہزار سے کم رقم نہیں ہے۔ تو آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اتنی بڑی رقم آپ کو اس بار کیوں مل رہی ہے؟ کیا کوئی پہلے والی قسطیں ساتھ میں جاری کر دی گئی ہیں، یا مستقبل میں آنے والی قسطیں جو ہیں وہ آپ کو پہلے دی جا رہی ہیں؟ تو اس حوالے سے سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، اور بعد میں وہ پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو اتنی بڑی رقم نہیں ملی، تو آخر کیا چکر ہے؟ تو اس حوالے سے آپ کو بالکل پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم وہ سارے طریقہ کار بھی آپ کو بتانے جا رہے ہیں جن پر عمل کر کے آپ اتنی بڑی رقم لے سکتے ہیں۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اس معلومات کو غور سے سنیں، سمجھیں، کیا کچھ بتایا جا رہا ہے، کیا نئی پالیسی ہے، اور آپ نے کیا کچھ کرنا ہے کہ آپ کو اتنی بڑی رقم مل جائے۔ باقی یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو نااہل بھی کر دیا گیا ہے، ان کے پیسے بند بھی ہو چکے ہیں۔ جو لوگ کافی عرصہ سے پیسے لے رہے تھے، ان میں سے آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑی تعداد میں خواتین کو یہ بتایا جا رہا ہوگا کہ بھئی آپ تو نااہل ہو چکے ہیں، آپ کے پیسے نہیں آئے۔ تو اس حوالے سے آپ کو ہم ایک طریقہ کار بھی بتائیں گے کہ جس پر عمل کر کے آپ خود کو نااہل ہونے سے بھی بچا سکتے ہیں۔ اگر آپ نااہل ہو چکے ہیں تو اہل ہونے کا طریقہ کار بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ تو اس حوالے سے کافی اہم ترین معلومات آ چکی ہیں، آگے چل کر تفصیل میں سب کچھ آپ کو سمجھاتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک چھوٹا سا کام کر لیجیے، اس بار رمضان پیکجز جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں، ان کی الگ الگ رجسٹریشنز ہوں گی۔ رجسٹریشنز کے بعد کافی سارے طریقہ کار آئیں گے جن پر عمل کر کے آپ اپنی رقم گھر بیٹھے وصول کریں گے، یا مفت آٹا اور راشن اگر ملے گا تو اس کا بھی طریقہ کار ہوگا۔ تو یہ طریقہ کار صرف ان لوگوں کو بتایا جائے گا جو ابھی سے یوٹیوب چینل اسکل مینٹر کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر سلیکٹ کریں گے۔ تو اس لیے آپ بھی ابھی سے اسی چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ یہ تمام تر معلومات آپ کو گھر بیٹھے ملیں اور آپ بھی رمضان پیکج میں اہل ہو جائیں۔ تو تفسیر کی جانب بڑھتے ہیں، تھوڑا سا غور فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اسکل مینٹر پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس مرتبہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی تمام ریگولر بینیفیشریز کو بڑی رقم مل رہی ہے۔ تمام خواتین کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر رکی ہوئی اکتوبر تا دسمبر تک 2025 کی جو آخری قسط تھی کفالت پروگرام کی، اور بچوں کے تعلیمی وظائف پروگرام کی جولائی تا ستمبر 2025 تک کی، اور اکتوبر تا دسمبر 2025 تک کی 2 قسطیں جو بچوں کی رکی ہوئی تھیں تعلیمی وظائف پروگرام کی، وہ بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ اکتوبر تا دسمبر 2025 تک کی کفالت پروگرام 13,500 روپے کی قسط بھی جاری کر دی گئی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ابھی آپ کو کنفرم کر دیں کہ سب سے پہلے نمبر پر ایسی تمام خواتین جو پہلے سے پیسے لیتی آ رہی تھیں اور انہوں نے جون 2025 تک
अपना डायनामिक सर्वे भी मुकम्मल करवा लिया था और उसके बाद भी उनके पैसे मिलते रहे हैं। उन्हें सितंबर वाली कफालत प्रोग्राम की किस्त भी मिली थी और बच्चों के वज़ैफ उस वक्त ज़ाहिर सी बात है नहीं आए थे। तो उस वक्त तक जितनी भी खवातीन अहल थीं उन तमाम खवातीन को खुशखबरी सुना दें कि वो ये डायनामिक सर्वे के बाद दोबारा से अहल भी हो चुकी हैं। उनकी अक्टूबर तक दिसंबर तक की किस्त भी आ चुकी है 13,500 रुपए की। बच्चों के वज़ैफ की 2 किस्तें जो रुकी हुई हैं वो भी आ चुकी हैं और इस बार उनकी रकम जो है वो पहले से कई गुना ज्यादा आई है। ठीक है, आप जानते हैं कि कफालत प्रोग्राम की किस्त जो है वो 13,500 रुपए 2025 तक थी और 13,500 रुपए की वो किस्त और बच्चों के वज़ैफ की डबल किस्तें जो हैं, हम अभी से ये भी हिसाब लगा लेते हैं कि अगर आपका एक बच्चा भी पढ़ने वाला है तो फिर भी आपको 20,000 रुपए तक की रकम जरूर मिलेगी। इसी तरह जिन लोगों के 4 या 5 बच्चे स्कूल पढ़ने वाले हैं, उनके वज़ैफ पहले से आ रहे थे और अब भी उनकी रुकी हुई किस्तें जारी कर दी गई हैं, तो उन्हें भाई तकरीबन 40 से 50,000 या 60,000 रुपए की रकम मिलेगी। हमने खुद इस हवाले से देखा है कि खवातीन को 40,000, 50,000, 60,000 इवन के 1 लाख से भी ज्यादा की रकम मिल रही है। लेकिन ये रकम उस वक्त आपको पूरी मिल पाती है या इतनी बड़ी रकम उस वक्त आप हासिल कर पाते हैं जब आप कुछ एहतियात करें। और एहतियात क्या है ये आप गौर से सुन लें। देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि इस बार इतनी बड़ी रकम आ रही है, तो जिन लोगों ने किस्तें वसूल कर ली वो तो बेहतर हो गया, उन्होंने जितनी भी वसूल की। अगर कटौती हुई है तो वो BISP के ऑफिस जाकर शिकायत जरूर दर्ज करवाएं, उनकी कटौती की गई रकम भी वापस आ सकती है। लेकिन जो मामला है उन खवातीन का जिन्होंने अभी तक अपने पैसे नहीं लिए और वो पैसे लेना चाह रहे हैं, क्योंकि ये हमने वीडियो में पहले भी बताया है कि इस बार दुकानों पर किस्त चली हुई है। ठीक है, रिटेलर शॉप्स पर जाकर आप अपनी ये किस्त ले सकते हैं। तो ये किस्त लेने के लिए जब आप जाएंगे दुकान पर तो वहां पर सबसे पहले आपने जाते ही अंगूठा नहीं लगा देना। ठीक है, आपने शनाख्ती कार्ड नंबर उनको देना है। वो डिवाइस में आपका शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करेंगे और उनको बोलें कि वो आपकी रकम शो करके डिवाइस आपके सामने रखें, आपको दिखाएं कि भाई आपकी ये इतनी बड़ी रकम आई हुई है और कोशिश करें कि आप खुद उसकी अच्छी तरह जजमेंटी करें कि वाकई आपको सही स्क्रीन शो की जा रही है। जब आपको इत्मीनान हो, अगर कुछ खवातीन होती हैं जिनको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता तो वो साथ में अपना ही कोई बंदा ऐसा जो इन चीज़ों के बारे में जानता हो वो साथ लाजमी ले जाएं। ठीक है, ताकि आपको ये अपनी बड़ी रकम का सबसे पहले कंफर्म हो कि कितनी रकम आई हुई है। तो उसके बाद जब आप वसूल करेंगे तो यकीनन आपकी पूरी की पूरी रकम आपको मिल जाएगी। उससे आपने 1 रुपया भी उन रिटेलर्स को नहीं देना, क्योंकि वो पहले से भी कमीशन ले रहे होते हैं। तो इस वजह से ये जो आपका हक है ये आपने इसी तरह महफूज तरीके से और एहतियात करते हुए वसूल करना है। तो हम आपको बता रहे थे कि पहले शनाख्ती कार्ड नंबर देना है, स्क्रीन शो करवानी है, अपनी रकम देखनी है। जब आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ वाकई मेरी इतनी रकम बनती है या यही मेरी रकम है और आपको इस हवाले से 100% श्योरिटी हो जाए तो फिर जाकर आप उसी डिवाइस पे वेरिफिकेशन के लिए अंगूठा लगाएंगे। अंगूठे की वेरिफिकेशन के बाद जो है आपको वो पूरी रकम गिनकर वसूल कर लेनी है। ठीक है, साथ में रसीद भी लाजमी लेनी है। अच्छा, काफी सारे लोग क्या करते हैं कि वो रसीद लेते हैं, उसको फाड़ कर मतलब फेंक देते हैं। तो उन रिटेलर्स हजरात से जो आपने रकम ली है वो भी आपने गिननी है और जो आपकी उस रसीद पर रकम लिखी गई है वो भी आपने देख लेनी है और जो रसीद पर रकम लिखी गई है वो पूरी की पूरी आपने गिनकर वसूल करनी है। उससे 1 रुपया भी कम आपने वसूल नहीं करना। अगर ऐसा हो जाए कि रसीद पर कुछ ज्यादा रकम लिखी गई है और आपको कम रकम मिल रही है तो फिर आप वही रसीद भी साथ ले जाएंगे और BISP की ऑफिस चले जाएंगे और मुतलका रिटेलर की शिकायत दर्ज करेंगे, उसकी लोकेशन बताकर, उसका नाम वगैरह बताकर। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि जो आपने जो ही अपनी पेमेंट्स लेनी है तो आपने साथ में रसीद लाजमी लेनी है। रसीद नहीं लेंगे तो आपका नुकसान अगर हो भी जाएगा तो उसका अजाला मुमकिन नहीं होगा। और रसीद लेकर आपने अपने पास महफूज रखनी है। अगर कोई गड़बड़ नजर आती है आपको तो आप उसका अजाला BISP की ऑफिस में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी आपको बता दें कि इस बार इतनी बड़ी रकम तो उन तमाम खवातीन की आ रही है जिनके पहले वाले पैसे रुके हों और कुछ खवातीन ऐसी भी हैं जिनकी इस रकम से भी ज्यादा कई गुना ज्यादा रकम आ रही है। तो वो ऐसी खवातीन हैं जिनकी कोई पहले वाली कफालत प्रोग्राम की किस्तें रुकी हुई थी या खसूसन वो खवातीन जो फाइलर की वजह से, अर्जेंट बेसिस पे ID कार्ड बनवाने की वजह से या PTCL बिल ज्यादा आने की वजह से ब्लॉक हो गई थी, तो उन्हें अब अनब्लॉक कर दिया गया है। उनके फाइलर केस जो है वो खत्म कर दिए गए हैं और उनकी पेमेंट्स जो है वो उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दी गई है। तो वो एक एक किस्त जो है वो आपको भेजी गई है। टोटल मिला के आपकी लाखों रुपए की रकम बन रही है तो वो आपने वसूल करनी है। तो ये ऐसे हजरात हैं जिनके कुछ अर्सा पैसे बंद रहे, चाहे उससे पहले 1 साल से पहले उन्हें पैसे मिल रहे थे, फिर कुछ अर्सा पैसे
बंद रहे, 2-3 किस्तें उन्हें नहीं मिली, और अब जाके ये जो अक्टूबर तक दिसंबर वाली किस्त है इसमें वो दोबारा अनब्लॉक हुए, और 8171 वेब पोर्टल पे भी शो हो रहा है कि उनका डायनामिक रजिस्टर में इंदराज हो चुका है। तो ऐसी तमाम खवातीन को अब ये इतनी बड़ी रकम मिल रही है। लेकिन ये जितनी भी रकम है तो पहले आपने चेक करवानी है, बाद में आपने वसूल करनी है। बाकी 8171 वेब पोर्टल भी आपको इस हवाले से खुशखबरी जरूर सुनाता है कि आप सिम के लिए एल हो चुके हैं। अगर सिम के लिए एल हैं तो ज़ाहिर सी बात है फिर भी आपकी किस्तें आ चुकी हैं। अगर आपको एक लाइन में स्टेटस नजर आ रहा है कि आपका डायनामिक रजिस्टर में इंदराज हो चुका है तो फिर भी आप एल हो चुके हैं, आपके पैसे आ चुके हैं। इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि ऐसे तमाम लोग जो पिछले कई सालों से पैसे ले रहे थे, अब 8171 से उन्हें दोबारा सर्वे करवाने का भी मैसेज मिला, फिर भी वो गफलत में रहे और अपना डायनामिक सर्वे वक्त पे नहीं करवाया, तो उन लोगों के लिए मसला बन चुका है। अब उन लोगों को डायनामिक सर्वे ना करवाने की वजह से प्रोग्राम से निकाल दिया गया, उनके पैसे बंद कर दिए गए हैं, और जब तक वो अपना नया डायनामिक सर्वे नहीं करवाएंगे तब तक उनकी किस्तें रोक दी गई हैं। और फिर जब नए डायनामिक सर्वे के बाद वो एल होंगे तो वो फिर नए सिरे से एज अ न्यू बेनिफिशियरी जो है वो प्रोग्राम में इंटर होंगे, तो उन्हें फिर एल होने के बाद वाली जो भी किस्तें होंगी वो जारी होती रहेंगी। इससे पहले कोई स्टोर होने वाली किस्तें उन्हें नहीं मिलेंगी। तो तमाम लोगों से गुजारिश है जो डायनामिक सर्वे ना करवाने की वजह से नायल हुए पड़े हैं या उनके पैसे बंद कर दिए गए हैं, तो वो अब जल्द से जल्द अपना डायनामिक सर्वे करवा लें, और डायनामिक सर्वे के 3 से 4 महीने के अंदर अंदर जांच पड़ताल मुकम्मल होने की सूरत में आपको दोबारा भी अहल किया जा सकता है, बशर्त ये कि आप अहल हों, हकदार हों। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी आपको बता दें कि ऐसी तमाम खवातीन जिन्होंने अपनी सिम ले ली है वो बेहतर हो गया वो अपनी सिम अपने पास रखें। उनके सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट जो है बहुत जल्द क्रिएट किए जाएंगे, बनाए जाएंगे। अब भी वो किस्त लेने के लिए जाएं तो सिम का ले जाना इतना ज्यादा अहम नहीं है, लेकिन वो सिम आपके पास वैसे हर वक्त एक्टिव होनी चाहिए। इसके अलावा जो है आपको ये भी बता दें कि ऐसी खवातीन जो अहल हैं लेकिन अभी तक अपनी वॉलेट सिम नहीं ली, तो वो जल्द अज जल्द BISP की वॉलेट सिम लाजमी लें ताकि बाद में उनका कोई मसला ना बने, और वॉलेट सिम जो उन्हें मिल रही है वो भी फौरन वसूल कर लें। ठीक है, इसके साथ साथ ये भी आपको बता दें कि इस बार वफाकी हुकूमत की जानिब से, सिंध हुकूमत की जानिब से, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से, पंजाब हुकूमत की जानिब से खुसूसी रमजान पैकेजेस जो हैं वो जारी किए जा रहे हैं। तो आप तमाम लोगों को सबसे पहली और बड़ी खुशखबरी ये सुना दें कि वफाकी हुकूमत की जानिब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से बाकायदा तौर पर PM रमजान रिलीफ पैकेज जो है वो जारी करने का फैसला कर लिया गया है। पिछले साल की निस्बत इस बार ज्यादा अवाम को इमदाद दी जाएगी, और इमदादी रकम जो है वो भी पिछले साल से ज्यादा होगी। तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए 80-70 का बहाली का इंतजार करना होगा, क्योंकि 80-70 पर ही आपकी रजिस्ट्रेशन की जाएगी। याद रहे कि 80-70 पर अभी से आपने कोई शनाख्ती कार्ड नंबर भेजना शुरू नहीं कर देना। अभी जो अपडेट्स पहुंची हैं 80-70 की सर्विस जो है वो कुछ उसे टेक्निकल इश्यूज का सामना है, तो बहुत जल्द टेक्निकल इश्यूज जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे और आप तमाम लोगों के लिए 80-70 की बहाली हो जाएगी। जब तक ये बहाली मुकम्मल नहीं होती तब तक आप कोई भी मैसेज 80-70 पर ना भेजें। इंशाल्लाह बहाली के बाद रजिस्ट्रेशन के आगाज के फौरन ही हम आपको सबसे पहले अपडेट करेंगे कि भाई अब आप 80-70 पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तरीकेकार भी आपको बताएंगे, सिर्फ शनाख्ती कार्ड ही नहीं भेजना होता, साथ में कोई कीवर्ड भी लिखना होता है, मतलब रमजान पैकेज या इस तरह का। तो जो भी होगा वो सबसे पहले हम आपको बताएंगे, इसलिए आप अभी से यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दें, क्योंकि इस बार रजिस्ट्रेशन जो लोग सही तरीके से रजिस्ट्रेशन करेंगे उन्हीं को सिर्फ ये रमजान पैकेज मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। जो गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन करेंगे उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए सही तरीकेकार आपको इसी चैनल पर मिलेगा, और सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जो अभी से यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर देंगे और कमेंट्स में थैंक्स लिखेंगे। तो फिर अभी से चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स में थैंक्स भी लिख दीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर भी कीजिए। साथ में आपको ये भी बता दें कि इस बार वफाकी हुकूमत के रमजान पैकेज की जो रकम है वो आपको डिजिटल वॉलेट्स में मिलेगी। ठीक है, और पिछले साल की तरह जब 99 से आपको मैसेज मिले थे उसी तरह 80-70 से इस बार भी आपको मैसेज आएंगे और आपको इंशाल्लाह बड़ी रकम मिलने वाली है। ठीक है, बाकी वफाकी हुकूमत के इस रमजान पैकेज में वो तमाम लोग शामिल होंगे जो बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब से ताल्लुक रखते हैं या किसी भी कोना से ताल्लुक रखते हैं पाकिस्तान के किसी भी कोना से, तो वो जरूर अहल होंगे। बाकी वजीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा की जानिब से निगहबान कार्ड दिए जा रहे हैं। PSER की बुनियाद पर लोगों को अहल किया जाएगा और बहुत जल्द निगहबान कार्ड उनके घर तक पहुँचाए जाएंगे। 42 लाख खानदानों को 10-10 हज़ार रुपए की रकम मिलेगी। निगहबान कार्ड के साथ आपको राशन की सहूलत भी मिलेगी, मतलब उससे आप राशन की खरीदारी भी कर सकेंगे। और साथ में ये भी आपको बता दें कि पहले से राशन कार्ड होल्डर्स जो हैं उनको 3,000 रुपए मिल रहे थे, अब उन्हें रमजान में 10,000 रुपए दिए जाएंगे। अरबों रुपए का बजट जो है वो रखा गया है। 47 अरब रुपए के करीब जो है वो पंजाब का बजट है, और इसके साथ साथ 15-15 हज़ार रुपए जो है वो सिंध के लोगों को मिलेंगे, और 25 अरब रुपए का बजट जो है
وہ سندھ صرف رمضان پیکج کے لیے رکھ رہی ہے، اور خیبر پختونخوا کی حکومت نے تقریباً کوئی 15 ارب روپے کا بجٹ جو ہے وہ عوام میں رمضان پیکج تقسیم کے لیے رکھا ہے، اور خیبر پختونخوا میں بھی تقریباً کوئی 12,000 روپے کی رقم فی خاندان دینے کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ تو تمام آپ صوبہ سندھ سے ہیں، بلوچستان سے ہیں، خیبر پختونخوا سے ہیں، پنجاب سے ہیں، جہاں سے بھی ہیں، آپ کی رجسٹریشن بہت جلد اگلے 2 سے 3 دن کے اندر شروع ہونے والی ہے۔ تو رجسٹریشن کا مکمل طریقہ کار آپ کو اسی چینل پر ملے گا، اس لیے آپ ابھی سے یوٹیوب چینل کیلومیٹر کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر سلیکٹ کر دیں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی معلومات کے ساتھ، بڑی خوشخبریوں کے ساتھ۔ تب تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔